about this. Okay, so now what we have, next topic that we'll be studying is drainage system. Okay, drainage system. So basically under this topic we'll study about uh, types of drainage, obviously definition of drainage, types of drainage हम basically types of drainage हम दो भाग में करते हैं, drainage system and pattern. Then we'll talk about rivers. Rivers हर साल एक क्वेश्चन आता है map based in prelims. Okay, so we need to have a bit fear of, तो हर रिवर के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए. बेसिकली एवरी रिवर एंड इज ट्रिब्यूटरीज और थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को देखें तो कौन कौन सी स्टेट से पास करती है. ओके, सो वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट दिस थिंग. आई होप इतना क्लियर. एनी डाउट? ओके, कोई भी डाउट होगा यू कैन जस्ट पर्सनली मैसेज मी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Drainage system, or you can say drainage basin. So drainage basin is basically nothing but it's a catchment area of a river. And what do you mean by catchment? Catchment is nothing but it is an area that provides water and sediments to river. Okay, so basically suppose this is a river going. Okay, river is providing for, अब ये slope है, river is provided with some tributaries. Okay, तो basically tributaries को भी water कहाँ से मिल रहा है basically? So basically two ways through which water is moving, overland flow and through proper river flow or through proper channelized flow, you can say. So how overland flow is taking place? Through sheet wash process, slopes ke through sheet wash process, what is happening? Downslope water and sediments are moving, and these water and sediments they drain towards a common point. Okay, so through overland flow, water and sediments are being supplied to rivers, and also through these proper channelized tributaries. Okay, these tributaries are being fed by, you can say, through rainfall, or some glacier is present, glacier is melting, or even through groundwater sources. Right, water seeps in, hydrological cycle में पढ़ता, water seeps in, groundwater gets selected. Now sometimes what happens on the hilly slopes, there can be cracks in the slopes of the mountains, and through those cracks water may pour out. Okay, and then those water may flow, overland flow will take place, and it will feed water to the river. And these cracks through which water pours out, and basically cracks, or you can say opening on the earth surface through which water pours out. Water means groundwater pours out. They are known as springs. Okay, जैसे हिमाचल वगैरह में जाओगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वाटर बाहर निकल रहा होता है स्लोप से. So what are those? Those are nothing but springs, and these are very important for the livelihoods of the hilly regions. Okay, not clear? So basically two ways through which water is provided, and those ways are overland flow or river flow. And now what is happening? This whole area is known as river basin. Not just river that is flowing, but also these parts also, because these are the areas which are providing water and sediments to river. So this is known as river basin. And what we have, so this is one river going, this is another river going. तो इसका river basin क्या हुआ? इस river का river basin यहाँ से start होके
यहाँ तक, बिकॉज दिस इज इट्स कैचमेंट एरिया जो इसको रिवर वाटर और सेडिमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली अनदर रिवर का बेसिन क्या हो गया, या कैचमेंट एरिया ये वाला पार्ट हो गया। ओके, और जो ये लाइन सेपरेट कर रही है रिवर बेसिन ऑफ वन फ्रॉम रिवर बेसिन ऑफ टू, इसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड, और यू कैन से वाटर शेड। तो इंडिया में एक्चुअली वाटर डिवाइड कैसे बनती है, हमें इंडिया में वाटर डिवाइड हमें मिलता है लाइक दिस। तो इंडिया में वी हैव वाटर डिवाइड विच एक्सटेंड्स फ्रॉम अरावली रिवर्स, आई होप अब आपको पता है अरावली रिवर्स, then Vindhya rivers, then Satpura region, then Western Ghats. So what we so these mountains make water divide of India. So basically what we are seeing, जो रिवर्स यहाँ फ्लो कर रही है, दिस रिवर्स डोंट मीट दिस रिवर्स, जो रिवर्स यहाँ फ्लो कर रही है वो इसको नहीं मीट करती, वो इसको नहीं मीट करती। ओके, सो ये इस रिवर का कैचमेंट बेसिन है, ये इन रिवर्स यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ रिवर्स दे आर फ्लोइंग, दे डोंट मीट दिस रिवर, बेसिकली दे आर कंप्लीटली सेपरेटेड बाय दिस वाटर डिवाइड, अरावली, विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न घाट्स। ओके, दिस इज द वाटर डिवाइड। एंड इफ यू सी, और ऐसे ही हमने पूरे इंडिया को वी हैव डिवाइडेड इनटू रिवर बेसिन्स, different river basins. Okay, so how we divide India? Okay, so we have this. One second, let me just draw. Then I'll let you know. Okay, so basically how we have divided India into river basins. Okay, और हमने वाटर डिवाइड क्या बनाया था, वाटर डिवाइड क्या हमारा था, ये रावलीस, देन विंध्या, सतपुरा, and over here western Ghats. So this is completely water divide. Okay, ये हमारा वाटर डिवाइड है। सो अगर हम बेसिन वाइड अगर हम देखें, so what we are finding, this is Indus basin. Okay, Indus basin basically originate over here. यहाँ पे अगर आपको याद हो मैंने कहा था मानसरोवर लेक है, और यू कैन सी तिब्बतन प्लेटू। तो मानसरोवर लेक से इंडस रिवर ओरिजिनेट्स एंड इट मूव्स लाइक दिस, इट मेक्स डेल्टा इन दिस रीजन। ये पाकिस्तान का कौन सा रीजन है, सिंध रीजन। ओके, तो ऐसी इसकी ट्रिब्यूटरीज विल सी। चलो इंडस रिवर हम अच्छे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, इंडस एंड मेन रिवर इंडस, और इसको वाटर कहाँ कहाँ से मिल रहा है, इस रीजन से, इट इज गेटिंग वाटर फ्रॉम दिस रीजन एंड दिस रीजन। तो इसका बेसिन क्या हो गया, तो बेसिकली इसका बेसिन दिस होल एरिया बेसिकली चेन के पंजाब, थोड़ा बहुत हरियाणा वाला पार्ट एंड वो वाला पार्ट क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश, बिकॉज सतलुज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इसलिए सतलुज हिमाचल से पास करती है, देन ब्यास, रावी, राइट। सो दिस रिवर बेसिन ऑफ इंडस रिवर। बाकी हम देखेंगे ट्रिब्यूटरीज इसकी सारी। आई होप इतना क्लियर। ओके, सिमिलरली वी हैव ओवर हियर गंगा रिवर, तो यहाँ पे गंगा की ट्रिब्यूटरीज आ रही है लाइक दिस। अभी हम देखेंगे सारी ट्रिब्यूटरीज। तो ये कौन सा बेसिन है, दिस इज गंगा बेसिन। ओके, सिमिलरली इसी रीजन से एक तो इंडस रिवर ओरिजिनेट हो रही है, एक सतलुज ओरिजिनेट हो रही है, इसी मानसरोवर लेक के आसपास से यहाँ से ओरिजिनेट होती है एक रिवर, जिसको जिसको चाइना में बोलते हैं यालोंग सैंगपो रिवर, और इंडिया में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडिया में बेसिकली इस वाले रीजन में दिहांग बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, और व्हेन इट एंटर्स असम वैली तो हम इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फिर यहाँ पे गंगा से मीट करके इट मेक्स
पद्मा रिवर है, गेस पद्मा और मेघना रिवर अभी आके देखेंगे, एंड फिर ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करते हैं जिनको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ओके, ये ब्रह्मपुत्र, तो ये वाला बेसिन क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र बेसिन। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, थोड़ा बहुत मणिपुर का, थोड़ा बहुत शिलोंग का पार्ट। ओके, सिमिलरली ये वाला पोर्शन, ये है मेघना बेसिन, मेघना या फिर बराक रिवर बेसिन। इसमें आता है त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। ओके, इतना क्लियर बेसिन। देन वी हैव, तो इससे ही आपको बहुत आइडिया लग जाएगा रिवर्स की, इंडिया की मेजर रिवर्स कौन कौन सी है। ये ब्रह्मपुत्र हो गया, ये बराक हो गया, बराक या मेघना। बाकी हम एक एक रिवर पढ़ेंगे, डोंट वरी, अच्छे से नीड नॉट वरी। ओके, देन ये वाला जो बेसिन है इसको हम बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इसलिए कौन कौन से पार्ट से पास करता है, सर्दर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, देन राजस्थान, देन कच्छ पार्ट ऑफ गुजरात। ओके, और यहाँ पे जो रिवर्स मिलती है वो हमें कौन सी मिलती है, इनलैंड ड्रेनेज। बेसिकली यूजली होते हैं रिवर्स ओरिजिनेट होती है, दे फ्लो इनटू ओशन, पर यहाँ पे जो रिवर्स मिल रही है दे ओरिजिनेट एंड दे जस्ट बीच में लैंड पे खत्म हो जाती है, दे डोंट ड्रेन इनटू सम सी और ओशन, तो इनलैंड ड्रेनेज बोलते हैं ऐसे। ओके, और ऐसी रिवर्स को हम क्या और साथ बोलते हैं, एफिमेरल रिवर्स। एफिमेरल रिवर्स होती है बेसिकली, इन रिवर्स में फ्लो इंक्रीज होता है जब भी प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल टेक्स प्लेस, तब इनमें फ्लो होता है, अदरवाइज व्हेन देयर इज अ सीजन ऑफ ड्राई सीजन तो इनके रिवर बेड्स आर ड्राई। ओके, तो दे फ्लो ओनली व्हेन देयर इज रेनफॉल, तो एफिमेरल रिवर्स। ऐसे हम रिवर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, सीजनल, पेरिनियल, एफिमेरल। तो एफिमेरल मैंने बता दिया, पेरिनियल पेरिनियल है कि जिनका फ्लो थ्रू आउट द ईयर रहता है, तो बेसिकली दे आर फेड बाय रेनफॉल एंड ग्लेशियर्स, तो ये हिमालयस में हिमालयन रिवर्स। सीजनल रिवर्स दे फ्लो ओनली फॉर सीजन ओनली। ओके, जैसे हम पेनिनसुलर प्लेटो वाली रिवर्स होती है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, ओके हमने गंगा बेसिन देख लिया, इंडस बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, बराक बेसिन। नेक्स्ट वी हैव ये वाला है साबरमती बेसिन, जहाँ साबरमती आश्रम था गांधी जी गए थे। देन वी हैव माही बेसिन, साबरमती और माही रिवर, माही एक्चुअली ओरिजिनेट होती है फ्रॉम महो, चलो आगे देखते हैं वो बात की बात। ओके, देन विंध्य और सतपुरा के बीच में यहाँ फॉल्ट है, फॉल्ट्स क्रिएटेड है, और इस फॉल्ट में कौन सी रिवर फ्लो करती है, नर्मदा रिवर, तो नर्मदा बेसिन। और सतपुरा के बीच में यहाँ पे फ्लो करती है साउथ में ये तापी रिवर, ये भी फॉल्ट है। ओके, नर्मदा तापी। देन ये वाली रिवर्स को हम बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, बिकॉज बहुत सारी रिवर्स है जो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप से हो रही है। देन सिमिलरली ओवर हियर वी हैव दिस इज, ये वाला बेसिन जो है सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा रिवर, ये बेसिकली ओरिजिनेट होती है झारखंड से, मैंने बताया था रेडियल ड्रेनेज, झारखंड से ओरिजिनेट होती है, फ्लोज थ्रू ओडिशा। ओके, इसी पे क्या था, जमशेदपुर सिटी है। देन ये वाला पार्ट है, दिस इज, ये रिवर बेसिन है दो रिवर्स का, ब्राह्मणी एंड बैतरनी। देन ये वाला बेसिन है, ये भी झारखंड और उससे फ्लो करती है, उड़ीसा से। देन वी हैव दिस महानदी रिवर, महानदी न्यूज में भी था अभी रिसेंटली, डिस्प्यूट है, इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ओके, तो बेसिकली ये फ्लो करती है छत्तीसगढ़ उड़ीसा, बेसिकली का जो रिवर रिवर बेसिन है इट इज एक्सपैंड एक्सटेंडेड टुवर्ड्स, क्योंकि कुछ ट्रिब्यूटरीज इसकी मध्य प्रदेश से भी आ रही है, महाराष्ट्र से भी आ रही है। ओके, तो ये बेसिकली इसके, और झारखंड से भी, तो ये इसके रिवर बेसिन है। देन वी हैव दिस, जिसको हम दक्षिण गंगा बोलते हैं, गोदावरी रिवर, अभी देखेंगे कौन कौन सी स्टेट से पास करता है। देन ये कृष्णा रिवर बेसिन, ओके कृष्णा, फिर ये है पेनार, पेनार रिवर बेसिन, ये है कावरी, और ये है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ओके, तो बेसिकली हम इंडिया को ऐसे बेसिन्स में डिवाइड करते हैं, इतना क्लियर।
Okay, so now we have talked about water divides, we have talked about definition of watershed and क्या कहते हैं, okay, then basins. Okay, so next, so now we'll talk individually about each and every rivers. एक second. Okay, okay, so now हमारा next topic है drainage system and pattern. Okay, so drainage system basically हमें कैसा, we have following types of drainage system. Pattern अभी बाद में डिस्कस करते हैं. Sequent and insequent ऐसे हम डिवाइड करते हैं. Basically drainage system which adjusts to underlying rocks. This is insequent means which is not adjusted to underlying rocks. So under this sequent, we study 4 types: consequent, subsequent drainage system. Then we talk about obsequent and resequent. ये बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना है, प्री में ही आ सकता है ये. दिस क्लासिफिकेशन वोंट कम इन मेंस. देन इनसीक्वेंट नॉट एडजस्टेड टू अंडरलाइंग रॉक्स, इसके हम दो डिवाइड करते हैं, एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड. Under this sequent, basically sequent में क्या हो रहा है, suppose this is a mountain, as mountain rises rainfall हो रही है, some rivers or starts originating, starts flowing, तो ऐसे ऐसे drainage system को बोलते हैं consequent. अब यही river flow कर रही है and ये river erosion cause करेगी. So now what will happen, this river is flowing, इस river ने erosion cause की mountain में, तो यहाँ पे क्या secondary slope create होंगे, secondary slope, एक रीजनल लेवल पे स्लोप्स क्रिएट हो गए. तो नाउ अलोंग दिस स्लोप्स अनदर सेट ऑफ रिवर्स स्टार्ट फ्लोइंग और वो इसकी ट्रिब्यूटरीज बन गई. तो ऐसी रिवर्स को हम बोलते हैं सबसिक्वेंट. ये क्या हो गया, इनिशियली माउंटेन ओरिजिनेट हुए, रिवर स्टार्ट फ्लोइंग, तो कॉन्सिक्वेंस, it is result of formation of mountains, तो consequent rivers. Then because of this consequent river what happened, ये consequent river flow कर रही है, because of this और changes आए रीजनल लेवल पे माउंटेन्स में, सेकेंडरी स्लोप्स क्रिएट हुई और फिर वहाँ पे फिर से रिवर्स फ्लो करना स्टार्ट गई और वो ट्रिब्यूटरीज बन रही है, उनको बोलते हैं सब्सिक्वेंट. ओके, सिमिलरली व्हाट विल हैपन, one second. ओके, अब ये ट्रिब्यूटरीज फ्लो कर रही है सब्सिक्वेंट रिवर्स, इसकी भी कोई ट्रिब्यूटरीज बनेंगी, ये भी कोई रीजनल लेवल पे, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट. एंड विद टाइम व्हाट विल हैपन, अब देखो जो माउंटेन्स होती है, माउंटेन्स की जो वैलीज होती है, उस फोल्डेड माउंटेन्स के केस में हम इसको बोलते हैं सिंक्लाइन और क्रेस्ट वाले पार्ट को बोलते हैं एंटीक्लाइन. नाउ व्हाट विल हैपन, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रिवर मास, इसको बोलते हैं मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम. ओके, ये भी रिवर. नाउ व्हाट विल हैपन, अब जो ट्रिब्यूटरीज बन रही है, ये ट्रिब्यूटरीज हेडवर्ड इरोजन की प्रोसेस से दे विल स्टार्ट moving backwards. Now what will happen, they will join, and as they will join they will start flowing in this direction. And when they will flow in this direction, what will happen, they will start eroding the valleys because water flow hai, and obviously they have high steep angle, so they will start eroding the valleys. So basically what will happen, this will start converting into this valleys.
So with time what will happen, this will turn into this syncline part, it will turn into ridge, and this anticline part will turn into valley. So over here what we'll find, anticline valley and syncline ridges. So now अब यहाँ पे मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर कहाँ पे फ्लो कर रही है, रिजेस पे, और जो पैरेलल टू कॉन्सिक्वेंट रिवर फ्लो कर रही है उसको हम बोलते हैं रीसीक्वेंट रिवर्स, एंड कहाँ पे फ्लो कर रही है, एंटीक्लाइनल वैलीज। आई रिपीट, नॉर्मली क्या हो रहा है, सिंक्लाइनल वैली और एंटीक्लाइनल रिज। तो यहाँ पे क्या फ्लो करिए, कॉन्सिक्वेंट रिवर, इसके ट्रिब्यूटरीज क्या बन रही है, सब्सिक्वेंट, एंड सब्सिक्वेंट की ट्रिब्यूटरीज क्या है, ऑब्सिक्वेंट, राइट, इतना क्लियर। ये जो सब्सिक्वेंट रिवर्स दे एक्सटेंड बैकवर्ड्स हेडवर्ड ओशन के थ्रू, दे जॉइन एंड स्टार्ट फ्लोइंग ओवर द एंटीक्लाइनल रिज। व्हाट विल हैपन, यहाँ पे इरोजन विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस, तो ये माउंटेन ऐसे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो व्हाट विल हैपन, दिस सिंक्लाइनल वैली will turn into ridge, and this will get eroded to such a level, ये ऊपर ही रह गया रिज की फॉर्म में और ये नीचे ही रोड हो गया, एंड तो हमें यहाँ पे क्या, एंटीक्लाइनल वैली। और जो रिवर फ्लो कर रही थी उस रिवर को हम क्या बोलते हैं, रीसीक्वेंट स्ट्रीम। क्लियर। so ये basically they adjust to underlying blocks. Then second we have not adjusted to underlying blocks, antecedent superimposed. तो antecedent rivers are those rivers, अगर देखो सपोज एक लैंड पे कोई रिवर फ्लो कर रही है, एंड नाउ आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, यहाँ पे माउंटेन्स इमर्ज हो गए, तो माउंटेन्स इमर्ज हुए तो क्या होएगा, इस रिवर का वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट होएगा एंड इट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और what may happen, it will erode this mountain and it will keep its जो अर्लियर पाथ था वो इंटैक्ट रखे। रिवर बेसिकली जो पहले फ्लो कर रही थी वैसी फ्लो कर रही है, इट डजंट मैटर वेदर माउंटेन्स हैव बीन फॉर्म्ड और नॉट। So these are known as antecedent rivers. So basically what happened, इंडिया में जब ट्रांस हिमालयस बने, राइट, तो देयर वर 6 एंटीसीडेंट रिवर्स दैट ओरिजिनेटेड, जिनको बोलते हैं इंडस, सतलुज, देन घाघरा, देन काली रिवर या सरदा रिवर, जो भी डिस्प्यूटेड था इंडिया नेपाल के बीच में, देन वी हैव कोसी रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो बेसिकली it looks like this. तो बेसिकली व्हाट हैपेंड, ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स बने, राइट, तो यहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट हुई, इंडस, सतलुज, देन ब्रह्मपुत्र, देन यहाँ पे इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे फ्लो करती है काली रिवर, ओके, देन यहाँ पे ककर रिवर, और बिहार से जो जाती है कोसी रिवर। तो ये रिवर्स थी ओरिजिनेट हुई, ओके, विद ट्रांस हिमालय। बट फिर ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स क्या हुआ, यहाँ पे और माउंटेन्स बनना स्टार्ट हो गए, बट व्हाट हैपेंड, चाहे माउंटेन्स बने बट दीज रिवर नेवर चेंज द कोर्स, रिवर्स अभी भी वैसे ही फ्लो करती है चाहे माउंटेन्स बन गए वहाँ पे, ओके। सो दीज सच रिवर्स आर नोन एज एंटीसीडेंट रिवर्स। और जो माउंटेन्स बने, जो ये ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक्स, वहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, गॉर्जेस, ओके। सिमिलरली मिडल हिमालय से ओरिजिनेट हुई रिवर्स, जैसे गंगा रिवर ओरिजिनेट हुई, तो गंगा रिवर एंटीसीडेंट किसके लिए है, जब शिवालिक बनी, मिडल हिमालय से शिवालिक बनी, तो वहाँ पे गॉर्जेस क्रिएट करती है गंगा रिवर, गंगा यमुना रिवर। तो दे आर एंटीसीडेंट फॉर मिडल एंड लोअर हिमालयस। सिमिलरली इंडस इज एंटीसीडेंट फॉर ऑल 3 हिमालयस। Clear, antecedent rivers. Similarly we have superimposed drainage. Antecedent rivers हमें बिलीव कहाँ मिलता है, हिमालयस में। सुपरइम्पोज्ड रिवर्स हमें मिलती है इन केस ऑफ दिस, क्या कहते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स। बेसिकली सुपरइम्पोज्ड रिवर्स क्या है, suppose we have soft rocks and over here hard rocks. One second. Okay, suppose we have a topography, this upper layer is soft rocks and over here is hard rocks. So now what is happening, soft rocks, suppose river is flowing, river suppose ऐसे flow कर रही है,
ओके, रिवर का ये पाथ फिक्स है. नाउ व्हाट विल हैपन, सॉफ्ट रॉक्स है तो रिवर इसको इरोड करेगी. विद टाइम व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट गेटिंग इरोडेड. सो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, hard rocks and all these soft rocks have been eroded. So now river flows like this. So now what will happen, now there is change in type of bedrocks. तो bedrocks की वजह से क्या होना चाहिए, river का course drainage pattern थोड़ा change होना चाहिए, system change होना चाहिए. But what will happen, river will keep continuing to same will keep continuing to flow in the same direction only, same direction, same speed. So basically with change of underlying rocks there has not been change in the course of the river. So these are the known as superimposed rivers. जैसे गोदावरी होगी, then Krishna rivers. Okay, these are the examples. Clear? Drainage system. Then we have drainage pattern. Drainage pattern is basically nothing but हम ऊपर एरियल व्यू देख रहे हैं. एरियल व्यू, एरियल व्यू लगा लो या फिर आप लगा रहे हो हेलीकॉप्टर में बैठ के आप देख रहे हो नीचे. तो रिवर जो फ्लो कर रही है वो क्या पैटर्न बना रही है, what geometrical shape, what geometrical shape is formed by river, मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसको हम पैटर्न बोलते हैं. तो पैटर्न को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, फर्स्ट वी हैव ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न. इन केस ऑफ ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न ये हमें दिखते हैं इन केस ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स. तो फोल्डेड माउंटेन्स है, ओके. तो मेन रिवर फ्लो कर रही है एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही है. तो इसकी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन एट 90 डिग्री एंगल. तो जो ट्रिब्यूटरीज है वो 90 डिग्री एंगल पे मीट कर रही है. तो जो पैटर्न बन रहा है ऐसा, तो ये पूरा जो पैटर्न बन रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न. ये कहाँ मिलता है, फोल्डेड माउंटेन्स. सिमिलरली फॉल्टेड माउंटेन्स हमने पढ़े थे, ये फॉल्टेड माउंटेन्स थे जहाँ फॉल्टिंग हो रही है, होर्स ग्रैबन, राइट. सपोज इन केस ऑफ फॉल्टेड माउंटेन्स आल्सो रिवर इज फ्लोइंग एंड जो उसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही है दे कम एंड जॉइन एट 90 डिग्री. तो ऐसे पैटर्न को बोलते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न. ये कब कहाँ दिखता है, फॉल्टेड माउंटेन्स. ये दोनों पैटर्न सेम है, ट्रेलिस और रेक्टेंगुलर, दोनों की ट्रिब्यूटरीज 90 डिग्री पे ज्वाइन हो रही है. इट्स जस्ट फर्क क्या है फॉल्टेड माउंटेन्स और फोल्डेड माउंटेन्स का. क्लियर? देन वी हैव थर्ड टाइप वी हैव सेंट्रीपिटल. एक और होता है उसको बोलते हैं क्यूट डेंड्राइटिक, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न. इसमें बेसिकली जैसे ट्रीज की रूट्स नहीं होती, तो बेसिकली सेम रिवर फ्लो कर रही है और इसकी जो पहले क्या होता है 90 डिग्री पे था, यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज है वो दे आर मीटिंग एट सम एक्यूट एंगल, सम एंगल लेस देन 90 डिग्री. ओके, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री. तो ऐसे पैटर्न को बोलते हैं डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न. ओके, इसका एग्जांपल हो गया इंडस, गोदावरी. ओके, रेक्टेंगुलर का पैटर्न हमें इंडिया में कहाँ पे मिलते हैं, फॉल्टेड रिवर्स नर्मदा, फोल्डेड माउंटेन्स नर्मदा एंड तापी रिवर. इसका एग्जांपल हो गया कोई भी हिमालयन रिवर, गंगा एंड ऑल, गंगा यमुना वगैरह. ठीक है. तो थर्ड डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न. फोर्थ वी हैव रेडियल या फिर हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, कोई सपोज डोम शेप माउंटेन्स है, ऐसे अपलिफ्टेड माउंटेन्स. तो कॉमन पॉइंट से क्या हो रहा है, ओके, ऐसे माउंटेन है, ऐसी स्लोप्स, इट इज स्लोपिंग इन दिस डायरेक्शन. तो कॉमन पॉइंट से rivers are flowing. Okay, so it looks like this common point and river is flowing outside from this point, okay, outwards. So basically such are known as radial or centrifugal drainage pattern. इसका एग्जांपल बेस्ट है अमरकंटक प्लेटो इंडिया में. यहाँ से कौन कौन सी रिवर्स ओरिजिनेट होती है, नर्मदा, देन वी हैव सोन रिवर. अभी हम देखेंगे अमरकांतक प्लेटो. क्लियर? जैसे अभी एक और एग्जांपल मैंने बताया था अभी कैलाश तिब्बतन प्लेटो, वहाँ से कौन कौन सी ओरिजिनेट हो रही है, इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. ये भी इसका एग्जांपल है. ओके, देन वी हैव
सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल क्या था, आउटसाइड फ्रॉम सेंटर, सेंट्रीपिटल इज टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, सो दे आर ड्रेनिंग इनटू कॉमन सिंक एरिया। तो बेसिकली ये हमें कहाँ पे मिलते हैं यूजली, ग्लेशियर एरियाज में या फिर along desert areas. Desert areas. One second. ओके, सो वी हैव, तो बेसिकली ये सेंट्रिपिटल टाइप में क्या होता है, ग्लेशियर्स या फिर हमें डेजर्ट एरियाज, जैसे इसका एग्जांपल सांबर लेक। तो बेसिकली क्या होता है, डेजर्ट एरियाज में डिफ्लेशंस हॉलो बनते हैं, मैंने बताया था आपको, जैसे ओएसिस होते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग, वाटर यहाँ पे ड्रेन करता है टुवर्ड्स कॉमन सेंटर। या फिर आपको वो याद हो, मैंने बताया था जो डेजर्ट माउंटेन्स है वहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक वैली, बॉल्सन एरिया। तो बॉल्सन एरिया में सेंटर में क्या हो रहा है, रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड सेंटर, एंड इस सेंटर में क्या क्या बनती थी, प्लाया लेक। तो प्लाया लेक इज एग्जांपल ऑफ दिस, जैसे इस प्लाया लेक का एग्जांपल वो था सांबर लेक। और उसके आसपास क्या है, डिपोजिशन हो रही है एलुवियल फैंस की, जो बनके आप बनाते हैं बाड़ा बजादा या जैसे जो भी बोलते हैं। देन यहाँ पे पेडिमेंट्स, और ये फिर माउंटेन फेस, स्कार्प फेस। क्लियर? ओके, सो ये देन सिमिलरली वी हैव अनदर टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। ये इंडिया में बेसिकली कहाँ मिलता है, ये वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे रिवर जो फ्लो कर रही है, बिकॉज इन रिवर्स में देखो दे हैव टू ट्रैवल वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, सो दे ट्रैवल विथ वेरी फास्ट स्पीड। तो बेसिकली इनको टाइम ही नहीं मिलता कि टू फॉर्म मेंडर्स। सो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, रिवर जो फ्लो कर रही है, दे आर मेकिंग पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। रिवर 1, रिवर 2, रिवर 3, रिवर 4, ऑल these rivers are parallel to each other. Then last we have annular ड्रेनेज पैटर्न। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली वही जो इन केस ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न था। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या था, रिवर वाज फ्लोइंग लाइक दिस। नो व्हेन व्हाइल दिस रिवर्स आर फ्लोइंग लाइक दिस, तो ये एक अपनी एक रिवर वैली क्रिएट करेंगे जिसपे फ्लो कर रही है ये। They are flowing in some valley, oh, right? तो उस वैली में देखो, नाउ सम ट्रिब्यूटरीज विल ओरिजिनेट, जिसकी ट्रिब्यूटरीज बन रही है। तो नाउ व्हाट विल हैपन, दीस ट्रिब्यूटरीज दे विल extend backwards headward erosion के through, and when this extend backwards, the tributaries will start joining each other. So now what will happen, तो हमें पैटर्न क्या दिख रहा है, एक तो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है मेन रिवर्स, और उनकी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करके यहाँ पे भी एक फ्लो क्रिएट हो गया। तो एक वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में भी हो रहा है एंड ऑल्सो इस डायरेक्शन में भी। तो ऐसे ड्रेनेज पैटर्न को बोलते हैं एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। ओके, क्लियर? ये बेसिकली हमें इंडिया में कहाँ मिलता है, नीलगिरी हिल्स में। ओके, और ये पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न का इंडिया का वेस्टर्न घाट्स या फिर रॉकीज, एंडीज, वो सारे माउंटेन्स के दे आर नियर टू द कोस्टल एरियाज। ओके, एनी डाउट इन दिस? ओके, सो ये ड्रेनेज पैटर्न था। तो नाउ, तो बेसिकली ये बेसिक जो था आइडिया था आपका रिगार्डिंग ड्रेनेज पैटर्न। ओके, तो अब हम थोड़ा सा, अब हम विल स्टडी इंडिविजुअली ईच एंड एवरी रिवर, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यूजुअली प्री में आते हैं। ओके, तो इंडिया में देखो जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वाटर का, ब्रह्मपुत्र रिवर 40%, गंगा रिवर, ये फिगर्स याद रख लेना, मेरे को तो याद भी नहीं वैसे। ओके, देन कैचमेंट एरिया के हिसाब से हम रिवर्स को क्लासिफाई करते हैं, मीडियम, मेजर, मीडियम, माइनर। जिसका एरिया 20,000 किलोमीटर स्क्वायर है, मेजर रिवर 20,000 to 2,000, मीडियम
लेस देन 2000 माइनर रिवर। तो इंडिया में बस ये याद रख लेना, इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया वैसे ब्रह्मपुत्र है, सेकेंड इज इंडस। पर अब देखो ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर बेसिकली अगर हम देखें वो थोड़ा चाइना में भी फ्लो करती है, पाकिस्तान में भी। ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना में भी फ्लो करती है। तो हम इस पॉइंट से लेके टिल इट्स डेल्टा अगर हम ओरिजिनेट करें ब्रह्मपुत्र तो ये लॉन्गेस्ट है। पर अगर हम देखें इंडिया के अंदर कौन कौन सी रिवर, किस रिवर का मैक्सिमम कैचमेंट एरिया है, तो उसके हिसाब से गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर। ओके, इंडिया में 2525 किलोमीटर ड्रेन करती है गंगा रिवर, एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट इज गोदावरी रिवर। ओके, पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल मीन सीजनल रिवर्स। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो इंडिया की रिवर्स है, या तो वो अरेबियन सी में ड्रेन करेगी या तो बे ऑफ बंगाल में, या तो कुछ रिवर्स थी जो क्या थी, इनलैंड ड्रेनेज, जो सिर्फ लैंड पे ही खत्म हो जाती है। क्लियर? These are three types of drainage system. Okay, so let's talk about major। ये बेसिन मैंने आपको करा दिया मैप। ओके, तो अब हम इसमें वो करते हैं, now we'll study about each, एक एक रिवर हम स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल रिवर। तो रिवर्स को हम देखो ऐसे भी डिवाइड करते हैं, हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, या फिर वो बेसिन्स के हिसाब से भी डिवाइड कर लो। बेसिकली हिमालयन रिवर्स और वो कैसे डिवाइड करते हैं, ये अरावलीज, ये विंध्या, ये सतपुरा, ये वेस्टर्न घाट्स। तो जो जो रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, इन रिवर्स को हम बोलते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। और ये सारा जो जो पेनिनसुलर रिवर्स पे ओरिजिनेट हो रही है, पेनिनसुलर प्लेटो पे अवेलेबल है, ड्रेन कर रही है, उन्हें बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इंडस रिवर सिस्टम। ओके, आई होप आपको इतना पता है। इसमें देखो रिवर्स में केस में हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई सोर्स, कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, किन किन स्टेट से, या कोई इंपॉर्टेंट डैम होगा उस पर, बस इतना ही हमें स्टडी करना है। या उसकी कोई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी या तो न्यूज़ में रहता है। ओके, तो हमें ये पढ़ना है। इतना क्लियर? ओके, तो अगर हम देखें इंडस रिवर, तो इंडस रिवर बेसिकली कैसे फ्लो करती है, ओके, सो इंडस बेसिकली यहाँ पे कैलाश रेंज था, एक्सटेंशन लद्दाख, तो तिब्बतन प्लेटू, कैलाश रेंज या फिर मानसरोवर लेक। कैलाश रेंज में वी हैव मानसरोवर लेक, तो वहाँ से बेसिकली क्या होती है, इंडस रिवर ओरिजिनेट, इट फ्लोज लाइक दिस, JNK से, देन इट एंटर्स पाकिस्तान, एंड यहाँ पे जाके इट फॉर्म्स व्हाट, ये डेजर्ट वाला एरिया आ गया, यहाँ से फ्लो करके इट फॉर्म्स डेल्टा। ओके, ये इंडस रिवर है। तो ये इंडस बेसिन, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या होगी, वी हैव एक, आई होप आपको पता है इंडस रिवर के नाम पे ही वो बना था बेसिकली पंजाब 5 रिवर्स। तो यहाँ पे एक रिवर ओरिजिनेट होती है इन JNK, कहाँ से, वेरीनाग से। वेरीनाग एक लोकेशन है, वहाँ से झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है, एंड इट फ्लोज लाइक दिस एंड बिकम्स ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इसकी एक रिवर है किशन गंगा, जो न्यूज़ में रहता है। किशन गंगा एक पावर प्रोजेक्ट है जिसपे क्या कहते हैं, पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रही है, डैम प्रोजेक्ट है किशन गंगा रिवर, ये झेलम होगी। ओके, देन वी हैव, देन यहाँ पे हिमाचल में एक पास है, बारह लच्छा, बारह, ये बारह लच्छा पास। ओके, तो बारह लच्छा पास, तो बारह लच्छा पास से चनाब ओरिजिनेट्स एंड इट flows like this and it becomes tributary of
it's like this, sorry. Chenab becomes tributary of Indus, Jhelum ऐसे flow कर रही है and becomes tributary of Jhelum is tributary of Chenab और Chenab Indus में flow कर रही है. ओके, ये 3 रिवर्स होगी, इंडस, झेलम, चनाब. देन वी हैव रावी रिवर, ये नियर रोहतांग पास. ओके, रोहतांग पास. तो नियर रोहतांग पास ब्यास रिवर originates. Okay, and it flows like this, Ravi river, and it becomes tributary of Chenab river. Similarly we have ये होगी, then we have ब्यास. ब्यास भी यहीं से ओरिजिनेट करती है, नियर रोहतांग पास. इट फ्लोज. एंड सिमिलरली यहाँ से सतलुज रिवर आ रही है हिमाचल में, मैंने बताया था शिपकिला पास से एंटर करती है हिमाचल में, शिपकिला पास से फ्लो करती है. ओके, एंड ब्यास इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज, और सतलुज बिकम्स ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब, और फिर चनाब जाके इंडस में ओरिजिनेट होती है. यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे एक फेमस बराज है हरिके बराज, जो वेटलैंड भी है. हरिके बराज से एक कनाल जाती है, इंदिरा गांधी कनाल, जिससे राजस्थान में वाटर सप्लाई कर रहे हैं. इतना क्लियर? ओके. ओके, तो ये बेसिकली इंडस रिवर बेसिन है. हमने सोर्सेस भी देख लिए. तो यहीं पे अगर हमें थोड़ा सा आइडिया वाला लेना पड़ेगा, बिकॉज न्यूज़ में रहती है लोकेशंस, तो यूपीएससी प्री में पूछ लेती है क्वेश्चंस. ओके, तो जैसे ये इंडस रिवर जा रही है जेएनके से, और इंडस रिवर यहाँ पे क्या क्रिएट कर रही है, एक बैंड क्रिएट कर रही है, सिंटेक्चुअल बैंड, जिसके मैंने कहा था नंगा पर्वत. ये इंडस रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है देखो. अब देखो रिवर फ्लो कर रही है, अगर ये क्या, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इसको बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. लेफ्ट, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में देखो, जो लेफ्ट साइड से आ रही है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो राइट साइड से आ रही है ट्रिब्यूटरी उसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज. तो देखो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, एक नुब्रा रिवर है, शोक रिवर है, शोक रिवर, और शोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर. सिमिलरली इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गिलगित, गिलगित रिवर. ओके, देन वी हैव Swat river, then we have Kabul river. Okay, Tochi river, Gumal river, गुमाल पास भी आपने सुना होगा, कुराम. ओके, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है. देखो स्वैट पे क्वेश्चन भी आया था कि स्वैट वैली कहाँ पे है. इसके 2 रीजन थे, एक तो ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है, एंड सेकंड रीजन था उस साल क्या था, उस साल मलाला यूसुफजई पे वो हुआ था, तालिबान ने अटैक किया था, गोली मारी थी, एंड शी बिलोंग्स टू दिस रीजन स्वैट. तो ऐसे क्वेश्चन प्री में आते हैं लोकेशन बेस्ड. ओके, करंट बेस्ड ही आते हैं, चाहे अगर आपको पता भी ना हो कि स्वैट वैली बेसिकली, स्वैट वैली फॉर्म्ड अ स्वैट रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ इंडस, स्टिल यू कैन आंसर बिकॉज न्यूज में था ये. ओके, देन सिमिलरली वी हैव उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, जास्कर रेंज से ओरिजिनेट होती है जास्कर रिवर. देन किशन गंगा झेलम का पार्ट है, वेरीनाग से ओरिजिनेट झेलम, राइट. सोहान रिवर, देन यहाँ पे ये बारालच्छा पास से चनाब रिवर आ रही है. देन ब्यास रिवर, सॉरी ब्यास रिवर, ये है रावी रिवर. ये सब ट्रिब्यूटरीज ऑफ चनाब बन रही है. सतलुज रिवर आ रही है, एंड यहाँ पे पंचनाद बनी क्योंकि पांच पांच रिवर ज्वाइन होगी, एंड दे ज्वाइन एंड फॉर्म क्या कहते हैं इंडस. तो इन पे नाम रखा हुआ है पंचनाद, और क्या कहते हैं ये वाला रीजन पंजाब, 5 रिवर. कितना क्लियर इंडस रिवर का? एनी डाउट इन दिस? ओके, तो क्वेश्चन ऐसे आता है, तो आप वो देख लेना अभी रिवर्स कहाँ कहाँ से फ्लो कर रही है. JNK, देन पंजाब वाला एरिया, और ये HP वाला एरिया. तो ये इन 3 सेट से पास करती है. ओके, यूजली क्या था पहले, जो आजकल न्यूज़ में था अबाउट घग्गर रिवर, आपने सुना होगा घग्गर एंड सरस्वती. यूजली व्हाट हैपेंड, पहले सतलुज रिवर ऐसे फ्लो करती थी, पहले सतलुज रिवर ऐसे फ्लो करती थी हरियाणा और पंजाब में से.
पर बिकॉज ऑफ दिल्ली रिज की वजह से क्या हुआ, दिल्ली रिज फॉर्मेशन साथ साथ हिमालयस फॉर्मेशन, तो क्या हुआ, ये सतलुज रिवर इसका कोर्स चेंज हो गया, ये सतलुज रिवर स्टार्टेड फ्लोइंग लाइक दिस एंड इट बिकेम ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो इसका कोर्स चेंज हो गया, तो अब ये वाला जो पार्ट ऑफ रिवर है, ये क्या हो गया, यहाँ पे देयर इज नो सप्लाई ऑफ वाटर, तो ये ड्राई बेड बन गया। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं दिस इज, तो अब हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस ड्राई बेड को बेसिकली रिवाइव करना चाहती है, और ताकि इसमें क्या करे फिर, थ्रू सतलुज यमुना लिंक वाटर सप्लाई करे ऐसे, और यहाँ पे वाटर सप्लाई करे। तो बेसिकली ये क्या है, ये ड्राई बेड्स ऑफ कक्कर रिवर एंड सरस्वती रिवर। सतलुज को पहले बेसिकली सरस्वती रिवर बोलते थे, सतलुज वाला जो पार्ट था, तो सतलुज क्या हुआ, डिसमेंबर होके इट गॉट इसका रूट चेंज हो गया एंड बिकेम ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। पर जैसे वो पहले फ्लो करती थी इट वॉज सरस्वती रिवर एंड घग्गर रिवर बोलते थे। ओके, इसी को हरियाणा गवर्नमेंट रिवाइव कर रही है। ओके, आई होप इतना क्लियर आपको। कुछ नहीं, ये भी पॉलिटिकल स्टंट है ऐसे, और आपको आइडिया होगा कि ये हिमाचल, ये पंजाब, ये हरियाणा, तो दो रिवर्स फ्लो करती है, सतलुज और यहाँ से यमुना। तो हरियाणा में पानी नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं हरियाणा के लिए, हम यहाँ पे कनाल बना रहे हैं, ऐसे लिंक कर रहे हैं। बेसिकली ये सतलुज, इसको हम बोलते हैं सतलुज यमुना लिंक कनाल। तो हम क्या करेंगे, कनाल क्रिएट कर रहे हैं जो सतलुज का पानी क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा, बिकॉज सतलुज का पानी पाकिस्तान में जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो पानी इंडिया में ही रहे, तो हम डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि ये पानी हरियाणा में जाए, और ये पानी फिर हम इसको, और साथ साथ क्या करें, यमुना में यमुना का पानी यहाँ पे डाइवर्ट करें, और फिर हम यहाँ पे कनाल क्रिएट करें और हरियाणा में वाटर सप्लाई करें। तो ये हमारा एम है बेसिकली। तो हम क्या करें, यमुना और सतलुज से पानी लेके आ रहे हैं, तो ये सतलुज यमुना लिंक है, पर ये भी पॉलिटिकल इश्यूज में फंसा हुआ है। हरियाणा ने तो यहाँ पे कनाल, अपने एंड की कनाल क्रिएट कर लिया, पर पंजाब नहीं कर रहा, पंजाब बोल रहा है कि इसका पानी खत्म हो जाएगा। चलो वो डिफरेंट इशू है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट, पर आई होप इतना क्लियर आपको। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट, ये पढ़ लेना, देन वी हैव नेक्स्ट इज गंगा रिवर सिस्टम। ओके, गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा का आई होप ये रिवर्स दिख रही है आपको। तो गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो ग्रेट हिमालयास था उसकी ग्लेशियर्स प्रेजेंट है, मैंने कहा था, तो वहाँ पे एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर्स। ओके, तो वहाँ से ओरिजिनेट होती है। जो भी इंसिडेंट था जोशी मठ वाला, वो यही था, गंगोत्री ग्लेशियर के पार्ट वाला, जहाँ पे ग्लेशियर गॉट ग्लेशियर था उसका कुछ पार्ट ब्रेक हो गया, तो मेल्ट हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो रिवर फ्लो करती है उसका उसका वो क्या था, डिस्चार्ज इंक्रीज हो गया, और यू कैन से अमाउंट ऑफ रिवर फ्लो, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो डैम्स हमने बिल्ड कर रखे थे दे ऑल गॉट ब्रोक, और फ्लड का आ गया था इंडिया। ओके, चमोली इंसिडेंट। ओके, तो बेसिकली हाउ इट ओरिजिनेट्स, गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर ओरिजिनेट होती है, भागीरथी रिवर। ये शायद मैंने आपको एक फिगर भी भेजा था, अगर आपको याद हो, व्हाट्सएप पे, वन सेकेंड। ओके, तो बेसिकली गंगा ओरिजिनेट कैसे होती है, सपोज दिस इज उत्तराखंड। ओके,
तो उत्तराखंड में बेसिकली कैसे हो रहा है, ये है गंगोत्री, ओके, दिस इज केदारनाथ, दिस इज बद्रीनाथ, ये हमारे वो भी है तीर्थ यात्रा वाले, यहाँ पे यमुनोत्री, एंड इसके बाद पांचवा आता है कैलाशनाथ, मानसरोवर। ये हमारे 5 वो हैं जहाँ हम उसके लिए जाते हैं फॉर तीर्थ यात्रा, राइट। तो गंगोत्री रिवर से ओरिजिनेट होती है रिवर, जिसको बोलते हैं भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी। देन वी हैव बद्रीनाथ से ओरिजिनेट होती है रिवर, ओके, इसको बोलते हैं धौली गंगा, ओके। देन धौली गंगा रिवर, और यहाँ पे शायद कौन सी, इस रिवर का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शायद अलग, हाँ, ओके। धौली गंगा और एक और रिवर से ओरिजिनेट हो रही है, दे मर्ज, इस पॉइंट को हम बोलते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कॉन्फ्लुएंस टर्म यूज करते हैं, वे 2 रिवर्स मीट, तो इसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग, ओके। देन ये दोनों मर्ज होके दे बिकम अलकनंदा रिवर, एंड देन अलकनंदा रिवर में इसकी ट्रिब्यूटरी है नंदाकिनी रिवर, सो दे मर्ज एट करण प्रयाग, इस पॉइंट को बोलते हैं करण प्रयाग। इसीलिए प्रयाग मतलब होता है जहाँ पे 2 रिवर्स मीट कर रही है, जैसे इलाहाबाद को भी हमने नाम रखा है ना, भी पता नहीं क्या नाम रखा है, प्रयाग कुछ है, ओके। नंदाकिनी, अलकनंदा रिवर, धौलीगंगा रिवर, कर्ण प्रयाग, फिर केदारनाथ से रिवर आ रही है मंदाकिनी रिवर, और मीट करती है अलकनंदा रिवर को कहाँ पे, रुद्रप्रयाग, ओके। और फिर रुद्रप्रयाग में भागीरथी रिवर आके मीट करती है, दिस इज नोन एज देव प्रयाग। ये डायग्राम मैंने दिया हुआ है आपको नोट्स, वो ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। एंड फिर इट बिकम्स गंगा, तो गंगा ऐसे बनता है, कैसे धौली गंगा, विष्णु प्रयाग के बाद अलकनंदा रिवर बोलते हैं, अलकनंदा रिवर नंदाकिनी रिवर से मीट कर रहा है एट करण प्रयाग, देन इट स्टिल फ्लोज एट अलकनंदा रिवर एंड मंदाकिनी मीट करे रुद्रप्रयाग, अलकनंदा रिवर, देन अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर दे आर मीटिंग एट देवप्रयाग एंड दे बिकम गंगा रिवर, ओके। तो जो चमोली वाला इंसिडेंट होता वो इधर हुआ था, गंगोत्री के आसपास, ओके। नहीं नहीं सॉरी, धौली गंगा में होता है गेस, सॉरी, वो जो चमोली वाला इंसिडेंट हुआ था वो इधर हुआ था, धौली गंगा पे, इधर यहाँ पे जोशीमठ, एंड यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था धौली गंगा, है तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, पर यहाँ पे हुआ था इंसिडेंट, धौली गंगा कह लो या फिर अलकनंदा रिवर, ओके। ओके, तो ये इंसिडेंट हो गया, ओके। तो गंगा रिवर फ्लो कर रही है थ्रू, कहाँ से, देहरादून, फिर ऋषिकेश, ऋषिकेश वाला एरिया कौन सा है, जहाँ पे बब्बर तराई वाला रीजन, ओके। तो गंजी गंगा फ्लो कर रही है, इट्स लाइक दिस, कहाँ पे, कानपुर से फ्लो करती है, कानपुर, ये गंगा, राइट, यहाँ यहाँ पे, ओके चलो, तो इसके अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो जो ये वाली ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक होगी, और ये कौन सी है, लेफ्ट बैंक। तो देखो, तो देखो यहीं से यमुनोत्री से यमुना रिवर फ्लो कर रही है, तो यमुना क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी ऑफ, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, और यमुना की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, ये मालवा प्लेटो वाले या मध्य प्रदेश वाले रीजन से यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, चंबल रिवर, चंबल रिवर है, यहाँ अरावली वाले एरिया से राजस्थान से बनास रिवर आ रही है, पार्वती रिवर, काली सिंध, ओके।
ये चंबल की ट्रिब्यूटरीज है, बनास, कालीसिंध, पार्वती, और चंबल खुद ट्रिब्यूटरी यमुना की। देन सिंध रिवर, देन बेतवा रिवर, ये शायद धसन रहने देना, धसन, केन रिवर। और अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। देन ओवर हियर वी हैव सोन रिवर। ओके, सोन रिवर बेसिकली गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और ये जो यहाँ पे जहाँ पे मीट कर रहे हैं गंगा और यमुना, इसको हम बोलते हैं इलाहाबाद। क्या कौन सा प्रयाग बोलते हैं? अभी नाम रखा था ना इसका, प्रयागराज। हमने इसका नाम प्रयागराज रख दिया ना इलाहाबाद का। तो इलाहाबाद में जाके मीट करती है गंगा एंड यमुना, राइट। देन सिमिलरली सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है रिहांद रिवर, यहाँ पे रिहांद डैम है, राइट, क्लियर। देन यहाँ पे गंगा में कोलकाता में एक बराज है फरक्का बराज, जहाँ से गंगा का पानी हम डाइवर्ट करते हैं। और ये कौन सी रिवर है? हुगली रिवर। हुगली रिवर भी बोलते हैं, भागीरथी रिवर भी बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। और फिर गंगा आगे फ्लो कर जाती है बांग्लादेश में। सिमिलरली उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? गोमती रिवर, ओके, सरदा रिवर वही है काली रिवर जो इंडिया नेपाल की बाउंड्री बनाती है और जो एंटीसीडेंट रिवर है, सरदा काली रिवर। ये सरदा काली रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? घग्गर रिवर। घग्गर किसकी ट्रिब्यूटरी है? राप्ती रिवर। और फिर ये गंगा में मीट करती है, तो राप्ती, घग्गर, सरदा, इधर गोमती, फिर गंडक रिवर, फिर ये कोसी रिवर जो बिहार में सौर ऑफ बिहार है, ओके, सप्त कोसी बोलते हैं बिकॉज 7 टाइप्स ऑफ कोसी के मिलके, क्लियर। देन यहीं पर ही सिक्किम से रिवर आ रही होती है तीस्ता रिवर, पर वो ब्रह्मपुत्र में ज्वाइन होती है। आई होप ये गंगा रिवर क्लियर। तो ये देख लेना कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है, भागीरथी, गंगोत्री, यमुना, यमुनोत्री। कौन सी पीक है? बंदरपुंज पीक। चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट है? विंध्या रेंज में, जनाउपा हिल्स। बनास, अरावली हिल्स, बेतवा, केन, भोपाल, बानर, सोन, अमरकांतक प्लेटू, दामोदर, छोटा नागपुर प्लेटू, रामगंगा, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, घग्गर रिवर, साउथ ऑफ मानसरोवर रिवर। है ना क्लियर ये सोर्सेस? ओके, तो आई होप ये क्लियर आपको ये सब, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके, तो ये रिवर्स आपको ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये डायग्राम सी है, रट्टे मारने वो आपको इसको। ओके, तो ये एक और मैप। ओके, सिमिलरली वी हैव ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को हम सैंगपो भी बोलते हैं तिब्बत में, चाइना में यारलंग सैंगपो, असम में दिहांग, और सियांग, और साउथ ऑफ सदिया ब्रह्मपुत्र। बेसिकली वही अरुणाचल वाले पार्ट में दिहांग, फिर जहाँ से ये प्लेन में एंटर करती है उसको वो कौन सा एरिया? सदिया पार्ट है, तो वहां से क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। और बांग्लादेश में होती है जमुना रिवर। फिर जब वो कंबाइंड हो जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, जब कंबाइंड होती है उसको बोलते हैं पद्मा रिवर। ओके, और फिर यहाँ से मेघना रिवर आ रही है, उसके बाद हम बोलते हैं मेघना रिवर। चलो भी देखते हैं कैसे। इसको ऐसे बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर का, ये आ रही है यहाँ से गंगा रिवर, और ये भागीरथी रिवर, और फिर आगे हुगली रिवर। ओके, गंगा, तो ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे आ रही है। तो यहाँ पे हम सैंगपो बोलते हैं या फिर यारलॉन्ग सैंगपो। और ये कहाँ से इंटर करती है? ये सिंटेक्सियल बेंट था कौन सा? नमचा बर्फा, यहाँ गॉर्ज क्रिएट करती है। तो ये असम वाला एरिया जहाँ पे असम के प्लेन एरिया स्टार्ट होता है, तो इतने रीजन में इसको हम बोलते हैं दिहांग रिवर। पहले भी बताया था दिहांग रिवर। ओके, और इस पॉइंट से आगे ऑनवर्ड्स ये कौन सा? सदिया पॉइंट है।
बेसिकली इंडिया में कहाँ से फ्लो करती है, सदिया टू ये वाला पॉइंट है धुबरी, और ये नेशनल वाटरवे भी है, नेशनल वाटरवे 2 है गेस, 2 या 1, 2 है, ऐसे फ्लो कर रही है, फिर यहाँ पे ऐसे मूव, ओके, और यहाँ पे मेघना रिवर आ रही है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मीट करिए इस वाले रीजन में हम बोलते हैं इसको पद्मा, और फिर जब पद्मा और मेघना रिवर मर्ज करिए इसको हम बोलते हैं मेघना रिवर, और फिर यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा, ओके। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें, इसको दिहांग या सियांग, ओके, पर ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें तो ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, एक रिवर आ रही है दिबांग, ये बी है, ये एच था, फिर लोहित रिवर LOHIT, ओके, ये सारी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। देन नागालैंड से एक रिवर आ रही है धनसिरी, ओके, तो ये कुछ रिवर्स होगी। देन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम पढ़ते हैं, एक रिवर आ रही है सुबानसिरी, ये क्वेश्चन भी आया था, सुबानसिरी क्या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। देन वी हैव कामनिंग, KAMNENG। देन मनास रिवर, मनास का आपको पता है भूटान से आती है, बहुत फेमस रिवर है, राइट। देन तीस्ता रिवर जो सिक्किम से आ रही है, देन यहाँ पे रायदक, सिमिलरली वी हैव जल धक्का रिवर, ओके, ये क्लियर। तो इस वाले पार्ट में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं बांग्लादेश में, जमुना रिवर, ये वाला पार्ट पद्मा, ये वाला पार्ट मेघना, इतना क्लियर, एनी डाउट इन दिस। और ये यहाँ पे एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड आइलैंड बनाती है जिसका नाम है माजुली रिवर, ये तो आपको पता है, मैंने बताया। okay. तो ये बेसिकली हमने क्या पढ़ लिया, इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, तो ट्रिब्यूटरीज ही नाम याद करने, इसमें और कुछ है नहीं, रट्टा ही मानना है, ओके। सिमिलरली वी हैव पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर बेसिन्स, तो मैंने आपको वो बताया था वो मैप, तो उसमें एक रिवर पिक करेंगे अपन, तो महानदी रिवर अगर हम पिक करते हैं, तो महानदी रिवर, ओके, तो महानदी रिवर फ्लोज लाइक दिस, ओके, ये महानदी रिवर का कोर्स है। तो ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, अगर मैं आपको रीजन दिखाऊं, तो ये झारखंड, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, तो ये यहाँ पे एक माउंटेन्स है दंतकरण्या माउंटेन्स, जो बहुत फेमस है फॉर नक्सलाइट्स, ओके, तो वहां से ओरिजिनेट हो रही है महानदी रिवर फ्लोज लाइक दिस, उड़ीसा, और जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बेसिन पे यहाँ पे डैम बनाती है हीराकूद डैम, बहुत फेमस डैम है इंडिया का, ओके, तो ये वाला डैम, तो ये देखो ये बाउंड्री है, ये रेड लाइन, ये बाउंड्री है छत्तीसगढ़ और उसकी, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, तो यहाँ पे डैम क्रिएट हो रहा है हीराकूद डैम, ओके। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें, दो तीन याद करनी है, जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन सी है, जोंक, देन ओंग और तेल रिवर, ओंग जोंक तेल, और लेफ्ट बैंक कौन सी है, शिवनाथ, मंड, इब, हस्तियों, बस ये याद करनी है आपने, और नहीं कुछ याद करना, ओके। बाकी इतनी सारी है फिर नहीं याद कर सकते हम, ओके। और ये यहाँ पे रिवर्स आ रही है ब्राह्मणी बैतरणी, ब्राह्मणी बैतरणी महानदी, तो तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ट्रिपल डेल्टा, ट्रिपल डेल्टा हम बोलते हैं, ओके। एंड इट इज नियर टू चिलिका लेक, चिलिका लेक इज फेमस फॉर ऑलिव रिडले टर्टल्स, ओके। इसी में ही अब है
नेक्स्ट रिवर बेसिन है ये वेस्टर्न घाट्स लाइक दिस, ये गोदावरी बेसिन। तो ये ओरिजिनेट हो रही है यहाँ पे नासिक रीजन से, वेस्टर्न घाट्स मुंबई महाराष्ट्र में, और वहाँ से इट फ्लोज लाइक दिस। तो ये फेमस डेल्टा बनाती है, केजी डेल्टा बोलते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बिकॉज कृष्णा यहाँ पे है, दोनों मिलके केजी डेल्टा इज वेरी फेमस फॉर ऑयल गैसेस। ओके, तो बेसिकली ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पे लोकेशन है त्रिअंबकेश्वर हिल्स या पीक, कहाँ पे, नासिक डिस्ट्रिक्ट, वहां से ओरिजिनेट हो रही है। ओके, तो कैसे फ्लो कर रहा है, और ये कौन सा डेल्टा बना रहे थे, आर्कवेट टाइप डेल्टा, अगर आपको याद हो। ओके, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, धरना, पेनगंगा, देन वर्धा रिवर, वेनगंगा, पेंच रिवर, खनहान। ओके, ये इसकी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। पेंच तो आपको पढ़ोगे एनवायरनमेंट में, ये वो भी है, बायो नेशनल पार्क भी है। इतना क्लियर। ओके, सिमिलरली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसकी, देखो नाम याद करने ही पड़ेंगे, कोई इसका वो नहीं है, रट्टे तो मारने पड़ेंगे आपको, सिंप्लीफाई कर लेना डायग्राम को, इसी कोई ऐसे डायग्राम, धरना, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेंच, कन्नान, अपर वेगंगा। सिमिलरली वी हैव इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी है, मंजारा, प्रवारा, देन और कौन सी है, मनेर, MENER, पेड़ा वग्गू, बस ये दो नाम याद कर लेना। मंजारा रिवर बेसिकली हैदराबाद से जाती है, और यहाँ पे एक डैम क्रिएट होता है निजाम सागर, जैसे यहाँ पे श्री राम सागर, ये क्या रिजर्वायर्स है। ओके, डैम से निजाम सागर, श्री राम सागर। ओके, ऐसे हम एक यहाँ पे अभी एक और क्रिएट कर रहे हैं, पोलावरम, तो आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में आ रहता है। इसीलिए पोलावरम से क्या करें, गोदावरी का वाटर हम कृष्णा रिवर में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर, एनी डाउट इन दिस। ओके, सिमिलरली वी हैव देन गोदावरी के बाद है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होती है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है इसका, नहीं नहीं, नॉट महाबलेश्वर, हाँ हाँ हाँ, महाबलेश्वर के पास से, यस, महाबलेश्वर। ओके, तो कृष्णा रिवर इज लाइक दिस, मैं उसकी ट्रिब्यूटरीज को समझ गया था, इट्स लाइक दिस, महाबलेश्वर, सॉरी वो कृष्णा रिवर। ओके, नो लाइक दिस, तो बेसिकली इसमें कृष्णा रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, ये यहाँ पे महाबलेश्वर पीक है, वहां से ओरिजिनेट होती है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, कोयना, भीम, भीम ऐसे आ रही है, देन इस पे एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है नगर चुना सागर प्रोजेक्ट, जो हैदराबाद के पास है, मुनेरू इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ओके, देन इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, मालप्रभा, तुंगभद्र, तुंगभद्र। ओके, तुंगभद्र बेसिकली कैसे होती है, दो रिवर्स है, तुंगा एंड भद्र, ये दोनों मर्ज करके तुंगभद्र रिवर बना रही है, उसकी ट्रिब्यूटरी वर्धा। ओके, देन यहाँ पे एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है श्री सैलम प्रोजेक्ट, ये क्या टाइगर रिजर्व भी है। ओके, आगे जाके नगर सागर प्रोजेक्ट, एंड फिर यहाँ पे ये एक फेमस बराज है, प्रकाशम बराज, बराज। क्लियर, बराज बेसिकली, बराजेस क्या होते हैं, बेसिकली रिवर जा रही है उस पर बराज बनाते हैं, तो हम वहाँ से क्या करते हैं, वाटर डाइवर्ट करते हैं।
तो बराजेस ये होते हैं बेसिकली। ओके, तो ये हो गया कृष्णा रिवर। देन वी हैव कावरी रिवर। कावरी रिवर न्यूज़ में बहुत रहता है, आपने सुना भी होगा, बहुत इस पे डिस्प्यूट इतना होता है। सो व्हाट वी हैव, कावरी रिवर एक्चुअली कहाँ से, ब्रह्मगिरी रेंज है, वेस्टर्न घाट्स में ब्रह्मगिरी रेंज, वहां से ओरिजिनेट होती है। इट्स लाइक दिस। इफ इसकी डिस्ट्रीब्यूट इस कंट्री है तो ओके। उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, हेमवती, जो डैम भी क्रिएट हो रही है, हेमवती आ रही है और यहाँ पे हेमवती डैम, फरांकी। ओके, देन वी हैव अर्कावती। ओके, और ये फेमस यहाँ पे एक डैम है, कृष्णा राज सागर डैम। सिमिलरली ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक डैम है फेमस, मैथुर डैम। ओके, देन उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, कवानी, कवानी याद कर लो, भवानी, नोयल, अमरावती, और एक डैम यहाँ पे है उसके, ग्रैंड एनिकट। ओके, ये कावेरी रिवर होगी, इतना क्लियर। तो कावेरी रिवर की बेसिन कहाँ कहाँ पे है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी। तो ये चारों स्टेट्स बेसिकली फाइट करती है आपस में टू गेन एक्सेस ऑफ वाटर। जिसकी बेसिस पे हमने क्या था, कावेरी ट्रिब्यूनल बैठा था, जो आर्टिकल 262 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि पार्लियामेंट थ्रू लॉ कैन सेट अप ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल क्या करता है, इनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहा है। अगर ट्रिब्यूनल का वार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो उसका वार्ड फिर हम अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल पिटीशन लीव सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं केस। ओके, ये रिवर डिस्प्यूट्स अलग टॉपिक है। ओके, इतना क्लियर। देन सिमिलरली वी हैव पेन्नार बेसिन। पेन्नार बेसिन बेसिकली ये आंध्र प्रदेश में आती है, रायलसीमा वाला पार्ट। ओके, तो इसके रिवर चिरावती, पापागिनी, कुंडेरू, सगिलेरू, और एक रिजर्वायर क्रिएट करिए सोमासिला रिजर्वायर। तो पेन्नार रिवर बेसिकली कहाँ पे है, पेन्नार रिवर, अगर ये गोदावरी बेसिन है तो ये पेन्नार, ये कृष्णा, ये कावेरी, सॉरी ये गोदावरी बेसिन, ये कृष्णा ऐसे फ्लो कर रही है। फिर ये आंध्र प्रदेश वाला पार्ट, जो आंध्र प्रदेश वाला कोस्टल प्लेन, रायलसीमा पार्ट, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाला पार्ट, वहाँ पे पेन्नार, फिर ये कावेरी बेसिन। ओके, देन वी हैव सुबर्णरेखा रिवर। सुबर्णरेखा अगर आपको याद है झारखंड और उड़ीसा से फ्लो कर रहा था, और जहाँ पे वो प्रेजेंट है, क्या कहते हैं जमशेदपुर सिटी। तो सुबर्णरेखा रिवर, सुबर्णरेखा बस ऐसे याद रखो, इसमें कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज मत याद करना, नहीं याद रहेंगी। ब्राह्मणी रिवर, सो व्हाट वी हैव, अगर ये झारखंड एरिया है, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल, राइट। तो हमें यहाँ पे सुबर्णरेखा रिवर जा रही है, यहाँ पे ब्राह्मणी, बैतरणी, राइट, ये महानदी, ये है बेसिकली। ओके, ये होगी। देन फिर हम देखें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। तो ये नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर बेसिकली बहुत फेमस, न्यूज़ में भी रहता है, नर्मदा डैम बन रहा था। ये नर्मदा रिवर, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, हथनी, चंकेश्वर, कोलार, बरना और सांग। लेफ्ट बैंक कौन कौन सी है, ये सरदार सरोवर डैम, जहाँ पे हमने वो स्टैचू बिल्डअप किया है, राइट, सरदार सरोवर का, सॉरी वल्लभ भाई पटेल का। इंदिरा सागर डैम, राइट। देन वी हैव तवा रिवर, और ये तवा डैम, राइट। ये बरगी डैम, बरगी डैम, छोटा तवा रिवर, इंदिरा सागर, तवा, ये बस ये तीन चार नाम याद कर लेना।
यूजली न्यूज में वही आती है जो वो रहती है, क्या कहते हैं, मतलब सॉरी क्वेश्चन में वही आती है जो न्यूज में रहते हैं। ओके, सिमिलरली वी हैव, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकांटक प्लेटू से। देन वी हैव नेक्स्ट ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर कहाँ से फ्लो करती है, सूरत सिटी से। सूरत में तभी वो आते हैं, फ्लड्स आते हैं। ओके, तो बेसिकली मध्य प्रदेश का मुल्ताई फॉरेस्ट है, वहां से ओरिजिनेट होते हैं। ओके, एंड इट फ्लोज इनटू अरेबियन सी। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लो, याद रहेगी तो कर लेना, वरना मुझे तो याद रहती नहीं। मतलब ये क्वेश्चन बहुत रट्टे मारने वाला है। तो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसकी, गुमाई, अरुणवती, अनेर, सुकी। देन वी हैव पुन्ना रिवर, पंजारा, ये सब याद रहे तो कर लेना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, सुकी, गुमाई, अरुणवती, अनेर। लेफ्ट बैंक वगूर, अमरावती, बुरे, पंजारा, बोरी, गिरना, पुर्ण, मोना, सिपना। याद रहे तो कर लेना। देन वी हैव साबरमती रिवर। साबरमती रिवर कहाँ थी, अरावली के साउथ से ओरिजिनेट होके इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कैम्बे। जो ये वाला एरिया है गुजरात प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स में, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात रीजन। यहाँ पे न्यूज में भी था अभी रोरो सर्विस का। ओके, दहेज टू, एक और सिटी में कोई इधर नहीं आ रहा, यहाँ दहेज टू इस पॉइंट तक रोरो सर्विस स्टार्ट किया। रोरो सर्विस बेसिकली क्या होते हैं, हम बोट में कार्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इस लोकेशन से इस लोकेशन पे, उसको रोरो सर्विस बोलते हैं। रोल ऑन रोल ऑफ ऐसे कुछ बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली इस रिवर में साबरमती रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, साउथ ऑफ अरावली से ओरिजिनेट होती है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सही, लेफ्ट बैंक वकाल, हाथमती, वतराक। ओके, सिमिलरली वी हैव माही रिवर। माही रिवर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही है, मालवा प्लेटू से, धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट नहीं, अगर नहीं लिखा नाम मत याद करना फिर। देन लूनी रिवर, लूनी रिवर कहाँ फ्लो करती है, ये राजस्थान अरावली, तो इसके यहाँ पे ओरिजिनेट होती है, इसको बोलते हैं लूनी रिवर। और ऐसी रिवर जो फ्लो कर रही है वो बनास रिवर, जो चंबल की ट्रिब्यूटरी बन रही है। तो लूनी रिवर, इस लूनी रिवर की हार्डली कोई हुआ है, क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। तो लूनी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हुई अरावली से, और यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इट डजंट फ्लो इनटू अरेबियन सी, इसका यहीं पर ही खत्म होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज। ओके, घग्गर रिवर मैंने बता दिया आपको।